May I come now? Come in, please. Come in. Good morning, sir. Good Good morning. morning. Good morning. Have a seat. Thank you. अपने बारे में कंफर्टेबल हैं आप? Yes, ma'am. अपने बारे में बोर्ड को कुछ बताइए, लेकिन अपना नाम और निवास स्थान मत बताइएगा. Ma'am, I pursued my graduation from Ramjas College, Delhi University in Political Science Honours. Okay. I'm right now pursuing Masters in Political Science only from Open University. I also trained myself as NCC cadet for 3 years by Achha. my college. I see. Okay. Yes, sir. Yes, ma'am. And my hobby is to read books, fictional, non-fictional, both. Fictional, non-fictional, both. A very obvious question to you. You've been a student of political science in Delhi University and you've scored quite well. Yes. I can see that. और अभी आप अपना मास्टर्स भी परस्यू कर रही हैं पॉलिटिकल Yes. साइंस में. आपके लिए तो बड़ा आसान होता कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेती, तो आपने ज्योग्राफी क्यों ऑप्ट किया? Ma'am, it was a chance for me to read a new subject, and Okay. also it was very easy and convenient for me to pursue it in as an optional in I see. exam. Yes. But are you not that confident in political science? I am, but I had also interest to read like from very early, but I didn't get to read in class 12 itself. That Achha. is why I could not pursue it in graduation as well. So This was your chance to read Yes. geography because you liked it. Yes, ma'am. Yes. I see. I see. ठीक है. But what if it would have backfired? अगर आपके मेंस के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते इसकी वजह से तो? मैम एक्चुअली जो हमने एज ए जीएस भी इसको पढ़ते हैं ना, जीएस जनरल स्टडीज के रूप में भी, तो मेरा इंटरेस्ट रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें भी आ जाती है, तो Right. आई हैव ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साइंस एज अ सब्जेक्ट, बट लाइक आई परस्यूड आर्ट्स बिकॉज फॉर दिस जॉब इटसेल्फ. I want to say कि जो scientific subjects है वो since class 10th also like I wanted to pursue science as my subject, but जो ये bureaucrat का job है तो मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए arts is a necessary thing. That is why I came into this line, and geography has some scientific elements I believe. That is why I wanted to study geography in arts also. I see. I see. Okay. आपका जो कैडर प्रेफरेंस है वो बहुत यूनिक है. Yes, ma'am. But then that explains क्योंकि आप एक NCC cadet रहे हैं, 3 years तक you've been in the NCC. तो पुलिस सर्विस और जेल सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज. Yes, ma'am. तो आपने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्लूड ही क्यों किया है? आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को ही पहले लिख देती. Why did you? Along with the uniform job, I also have interest towards service which is more diversified and it includes people like as a frontline service, जिसमें कि आप लोगों से directly contact कर पा रहे, बात कर पा रहे, not a limited kind of desk thing. Okay. That is why. Okay. मुझे बताइए कि बिहार पुलिस जो है महिलाओं के लिए कुछ खास कर रही है क्या? Yes, ma'am. क्या कर रही है बताइए? सबसे पहले तो महिला थाना है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट्स में, जो जिसमें कि women feel more convenient to go and pursue justice system and be there. But what if I'm stuck in a problem somewhere remotely and I don't have a thana near me? तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें महिलाएं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think emergency response system के लिए 112 है और महिला specifically I think 1081 है जो women के लिए है. 1081 आप चेक कर लीजिएगा इसको एक बार. Okay. Yeah? ठीक है, सही है. Okay, you said that you like reading books, Yes, ma'am. both fictional and non-fictional. Yes, ma'am. Tell me, what was the last book that you read, and what is the next book that you target on reading? Ma'am, last book which I read was this From Deng's Vision to Global Monopoly: How China Controlled Rare Earth Industry. This is the theme of the book by Biplav Munshi. So I have not yet completed it because it's a very bulky book. Okay. So I like this book, and also along with that there is a book Last Among Equals जो कि बिहार के लिए है, बिहार स्पेसिफिक बुक है जिसमें बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन, कास्ट सिस्टम एंड हायरार्की वगैरह किसने लिखा है? ये लिखा है M.R. शरण. Okay. Yes, ma'am. Okay. तो ये भी complete हुई, so I think I'll be continuing with these books only. Is there a target that you've set for yourself, which is going to be your next book? Do you have a bucket list? Yes, ma'am. That would be my interest specific, and it is World War related non-fictional historical books जो कि Maurice Gabriel की है. I see. So you prefer reading non-fictional more than you prefer reading fictional? Non-fictional completely. It's not completely non-fictional as it is based on real historical accounts, like historical fictional. This Maurice Gabriel books because इसमें World War के टाइम पे जो events हुई हैं सारी चीजें उसको लेकर common life जो कैसे affect हुआ लोगों का, तो it's not totally a true story but it is based on true events. I see. Yes, I
I see, I see. Since you have an interest in that area, could you please tell me कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे परेड पे हमारे जो गेस्ट आए थे, जो हर साल आते हैं, Yes, ma'am. कोई खास बात थी उनके आगमन में? यस मैम, यूरोपियन यूनियन की चीफ आई थी, उनके साथ यूरोपियन काउंसिल के भी चीफ आए थे। तो स्पेशली हमारा अभी बहुत ही एक बड़ा माइलस्टोन डील कंक्लूड हुआ है उनके साथ, जिसको जो कि एफटीए है यूरोपियन यूनियन के साथ, जो कि एक ब्लॉक है इटसेल्फ 27 कंट्रीज का। सो इसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी माइलस्टोन काइंड ऑफ थिंग ऑन विच हैपेंड ऑन 26 जनवरी बिकॉज दे वर द चीफ गेस्ट। Right. You remember what she was wearing on that function? यस मैम, क्या खास बात थी उनकी ड्रेस की? it was Indo-Western thing, so element of India and element of Western. Any specifics? Do you know what exactly she was wearing? Did you read that in the newspapers? Not exactly the name, I didn't Didn't read it. Yes. ठीक है, सर Yes, क्या sir. पूछना चाहते एनसीसी में कौन से सर्टिफिकेट आपने होल्ड किया है? C, B, C both. सी आपने लिया है? Yes. कौन सा विंग था उसमें आपका? Senior division, जो दिल्ली बटालियन मतलब वर्ल्ड इसमें अलग अलग था, एयर, नेवल, Yes, it was territorial. टेरिटोरियल। Yes. ओके, वेरी गुड, कमेंडेबल जॉब। ये आसान नहीं है ऐसी सर्टिफिकेट लेना, वो भी टेरिटोरियल में, क्योंकि मैं खुद किया हुआ हूँ। Okay. उसके अलावा और किसी तरह के एडवेंचर में आपकी इंटरेस्ट रही होगी, माउंटेनिंग? Yes sir, I think ट्रैकिंग में मेरा इंटरेस्ट है, और जब हम उत्तराखंड में भी आई डिड अ स्मॉल ट्रैक, ज़्यादा टाइम अभी तक मिल नहीं पाया, एंड आई लाइक टू आल्सो गो फॉर सफारीज इन द लाइक टाइगर रिजर्व्स। ऑब्वियसली जब आप इसमें होते हैं और आपके चॉइसेस भी बता रहा है, तो जो मेन इन या वुमेन इन यूनिफॉर्म है, वो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे अलग होता है? क्यों आपका ये बार बार रुझान जो है, मुझे लग रहा है कि आप यूनिफॉर्म में ज़्यादा खुद को देखती हैं? I think it is a symbol of toughness, power and leadership. That is the basic thing. और उसी के लिए आप 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, उसके बाद भी आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि आपको अपनी सफलता को दूसरी की नज़रों में देखना चाहती हैं। I think so. Practice makes a man and woman both perfect. So it's a kind of practice for me to be here. मुझे तो लगता है कि आपका तो रिजल्ट निश्चित होने वाला है, आप जिस तरह से जवाब दे रही हैं, तो आपको अपने पे भरोसा नहीं है? I have trust in my efforts. So I think it's just a part of the ट्रस्ट तो journey. कंफर्ट को देता है ना, ट्रस्ट जब है तो आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स So that is where the thing lies. I don't like to be in comfort zone, I guess. That's the spirit, that's a good thing. अच्छा, मतलब पॉलिटिकल साइंस आपका रहा है, कई सारे पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, Yes, sir. किसी एक थ्योरी के बारे में आप बताइए और क्यों वो अच्छा है, और अगर उसमें और अच्छा किया जाए तो कैसे कर सकते हैं? सर सबसे ज़्यादा कोई रेलेवेंट थियरी और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, वो कौटिल्य की जो 3 थियरीज उन्होंने दी है, मंडला थियरी, उसके साथ में आजकल जो ये सप्तांग थियरी, और तो ये इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा आज भी रेलेवेंट है, जो उन्होंने 2000 ईयर्स से भी ज़्यादा पहले उन्होंने थियरी दी थी, और आज भी वो बहुत ज़्यादा ट्रू है, जिसमें वो कहते हैं कि जो एक मत्स्य न्याय चलता है वर्ल्ड में, यानी कि माइट इज राइट एंड पावरफुल विल डोमिनेट, जो पावरफुल फिश है वो लेस पावरफुल फिश को हमेशा पीछा करेगी। तो इट मीन्स कि हमें पावर मैक्सिमाइज करने की जरूरत है उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग हर स्टेट को। तो आज भी वही देखने को मिल रहा है, और आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले भी वही ट्रुथ था। तो आई थिंक इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और इसमें उन्होंने नेबरहुड पॉलिसीज के बारे में भी बात की है, जिसमें कि जो हमारे इमीडिएट नेबर है वो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे, उनके इमीडिएट नेबर हमारे लिए फ्रेंड्स होंगे, और ये आज भी ट्रू है, जो कि उन्होंने इतने टाइम पहले कही थी, और सारा जो जियो पॉलिटिक्स है इसी पे बेस्ड है। ओके, अगर आप जेल सुपरिटेंडेंट बनती हैं तो आप किस तरह के सुधार करेंगी, या क्या आपका अप्रोच रहेगा? सर जेल सुपरिटेंडेंट के पास काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे वो सेक्शन के लोग जो पनिश्ड है और जिन्होंने जो भी क्राइम्स किए, तो बट हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव जस्टिस की बात करता है। तो आई थिंक उनको पनिशमेंट तो ऑलरेडी मिला हुआ है, बट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इस तरीके से उनके साथ वहाँ डील किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, कि वो फिर से सोसाइटी में एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ज्वाइन कर सके। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उनका ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना हो, वो सब I think it will be my priority to do. Okay, very good, sir. सर तो बीए ऑनर्स किया आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और फिर एमए आप कर रही इग्नू से। Yes, sir. दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दिया आपने? सर मेरा जो प्रायोरिटी बहुत पहले से ही था कि मुझे ये प्रिपरेशन करनी है और मुझे ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करना है, दैट इज़ वाई टाइम ज़्यादा इधर देने के लिए मैंने ओपन से किया। कब इस्टेब्लिश हुआ था इग्नू?
इग्नू, सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर, मोटो क्या है इसका? सॉरी सर। आप बिहार पुलिस सर्विस को टॉप पर रखा है प्रेफरेंस में आपने। आप 3 ऐसे काम बताइए कि पुलिस में जाकर के वो आपकी प्रायोरिटी में होगा। सर सबसे पहले तो क्राइम कंट्रोल प्रायोरिटी होना ही चाहिए एज अ पुलिस। सेकंड कम्युनिटी क्या करेंगे उसके लिए आप क्राइम कंट्रोल के लिए? ये तो बहुत वेग टर्म हो गया। यस सर, प्रोएक्टिव पुलिसिंग इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव इन द सेंस कि जब हमें आइडिया होता है कि कहाँ पे क्राइम होने के ज़्यादा चांसेस है, एरिया वाइज हो या फिर वुमेन को सेफ्टी लेकर रेगुलेशंस हो, यानी कि पहले से ही वहाँ पे उन एरियाज पे या उन जगहों पे और या उन लोगों के प्रति जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि उससे प्रिवेंट कर सकते हैं क्राइम को ज़्यादा डैमेज होने से पहले। सेकेंड प्रायोरिटी मेरी होगी कम्युनिटी पुलिसिंग, जिससे कि जो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट का लैक ऑफ ट्रस्ट है पुलिस के प्रति, वो भी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हो, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो हमारे डीजीपी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट की जिसके थ्रू ये जो लैंड डिस्प्यूट्स बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम का रीज़न है, तो उन्होंने जो SHOs होते हैं उनको उनके थ्रू मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, जो ऑलरेडी आइडिया है कि हाँ ये इनके बीच में ये सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो उनको आउट ऑफ पुलिसिंग के बाहर ही बात करके उन दोनों का मीडिएशन कराना, क्योंकि जब क्राइम हो जाता है तब वो पुलिस का पार्ट है, लेकिन ऑलरेडी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो वो सिविल डिस्प्यूट वो पुलिस के अंदर में नहीं आता, तो लेकिन क्राइम हो जाने के बाद करने से तो कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई उन्होंने ये स्टार्ट की, तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग की तरह काम करता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है, इससे क्राइम ऑलरेडी प्रिवेंट हो सकता है। थर्ड, आई थिंक साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके प्रति अवेयरनेस और इसके प्रति प्रोएक्टिव अप्रोच रखना, ये भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ये 3 मेरी प्रायोरिटीज है। अभी आपने वीमेन सेफ्टी की बात करी, सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई अंतर है क्या? आई थिंक सर सिक्योरिटी सेफ्टी शॉर्ट टर्म मेजर्स के हिसाब से सेफ्टी की बात करते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म में सिस्टम को प्रो वुमेन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सिक्योरिटी का अप्रोच होगा। आप जितना मैं संतुष्ट हैं समझ इस पा जवाब रही से? हूँ, सॉरी नो सर, मैं भी संतुष्ट नहीं, बट मुझे ऐसा समझ आ रहा है। वीमेन सेफ्टी से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन है कि अक्सर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसका बहुत धड़ल्ले से मिसयूज भी हो रहा है। अखबार भरे पड़े रहते हैं ऐसी खबरों से। चूँकि आप महिला भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी आप रहेंगी, तो आप महिलाओं से रिलेटेड कानून का मिसयूज ना हो इसके लिए आप क्या करेंगी? एक महिला है जो आकर के आपके पास रिटन में कंप्लेंट दे रही है, रो भी रही है, और आप देख रहे हैं कि ये जो शिकायत कर रही है उस व्यक्ति के बारे में, उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है दोषी अगर साबित हुआ तो। ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? 2-3 स्टेप्स बताइए। सर फुल नॉलेज होना जरूरी है। अगर वो केस रिपोर्ट कर रही है, ध्यान रखिएगा कि 5 साल तक की सजा हो सकती है। यस, तो वो जो कह रही है, तो अगर उस पर डाउट है तो और भी लोगों से बात आप करेंगे। कैसे डाउट करिएगा? यस, आप कैसे डाउट करेंगे? उस इंसान क्यों से डाउट होगा जिसके आपको? बारे में वो कंप्लेन कर रही है उनसे उनसे तो पूछताछ होगी ना। तो अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर मतलब उससे मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं इनके ओपिनियन में, तो हमें और भी ज़्यादा फिर लोगों से बात करनी होगी, आसपास के या फैमिली मेम्बर्स से। उससे भी कुछ हद तक हमें सच का पता चल सकता है। और फिर जो लॉज है उसका जेंडर न्यूट्रल इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर वहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिख रहा है कि नहीं, ये अगर ये कह रही है ये झूठ है, तो फिर जो लॉज है उसका जेंडर न्यूट्रल इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, जो कि आजकल एक बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक हो गया, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लॉज जो है वो वुमेन को फेवर करते हुए, तो कई बार इसका गलत मिसयूज भी हो रहा है। तो अगर ऐसा है, तो अगर वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है कि ये झूठी कंप्लेन है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर सच में उनके खिलाफ में मुझे एविडेंसेस मिलते हैं, तो फिर एज इट इज जो जनरल न्यूट्रल लॉज की बात कर रही हैं, क्या महिलाओं से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, चाहे रेप के हों, डोमेस्टिक वायलेंस के हो या डॉरी एक्ट के हों, क्या ये जेंडर न्यूट्रल है? ये वुमेन को फेवर करते हुए, और जो तो कार्रवाई तो आपको इसी एक्ट के माध्यम से करनी है ना। Yes. फिर आप कैसे इसको जेंडर न्यूट्रल आप बना देंगे?
लेकिन हमारे जो हमारे आईपीसी सीआरपीसी जो आज बीएनएस और बीएनएसएस वगैरह उसके अंदर में वायलेंस है, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स है जो कि सीधा सीधा बात करते हैं क्राइम की, वो जेंडर की बात नहीं करते। तो अगर ऐसा है कि वो वहाँ पे अगर वायलेंस हो रहा है, अगर मान लीजिए वुमेन ही अगर गलत कर रही है तो वो तो वायलेंट हो रही है ना, अगर मेन के साथ, अगर मेन कर रहे हैं तो वुमेन के साथ, तो वो वायलेंस वहाँ यूज हो रहा है, तो उसके खिलाफ में लॉज है, उसको यूज कर सकते हैं। अगर जो भी मतलब लॉज जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए बने थे वो बहुत बड़े बड़े जो कांड होते रहते हैं हमारे सोसाइटी में उन सबको प्रिवेंट करने के लिए थे, जो वुमेन आज तक सब्जुगेटेड रही है इसलिए। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे लॉज है जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, आई बिलीव। क्या पॉक्सो एक्ट में महिलाओं के अगेंस्ट में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए वो है क्या, लीगल एक्शन लेने की बात है क्या? पॉक्सो एक्ट पता है इसके बारे में? इसमें नहीं है महिलाओं, सॉरी सर, मैं श्योर नहीं है। ठीक है। अभी जियो पॉलिटिक्स की बात की आपने, क्या होता है ये? चूंकि पढ़ते तो हम लोग भी अखबारों में है, लेकिन आम आदमी को समझ नहीं आता है, बहुत भारी भरकम शब्द है, क्या मतलब होता है इसका? जियो प्लस पॉलिटिक्स यानी कि ज्योग्राफी किस तरीके से पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है वर्ल्ड में, यानी कि जैसे कि हमारा इमीडिएट नेबरहुड है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो ये ज्योग्राफिकल सिचुएटेडनेस है और ये हमारे पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, हमारे जो उनके साथ रिलेशंस होंगे वो कैसे इम्पैक्ट होंगे, उसको बेसिकली जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। या फिर अगर हमारे सराउंडिंग में वाटर ओशन है वो हमारे पॉलिसीज को कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो सब। कोई उदाहरण? जैसे कि अगर इंडियन ओशन है, इंडिया का सब बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। कोई ऐसी घटना बताइए जो ऑलरेडी हो चुकी है, घट चुकी है और आपके अकॉर्डिंग वो जियो पॉलिटिक्स का बहुत शानदार उदाहरण है। अभी जो चल रहा है बहुत सारे, जैसे कि ग्रीनलैंड को लेकर इतना वो चल रहा है, तो वो ज्योग्राफी और वहाँ का रिसोर्स को लेकर बहुत, और नॉर्दर्न सी रूट जो आर्कटिक के से लिंक करता है, तो वो उसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है और इससे हमारे चाइना हो या यूएस हो या इंडिया की पॉलिसी जो आर्कटिक को लेकर या ग्रीनलैंड को लेकर वो इम्पैक्ट होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रेलेवेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, साइबर क्राइम की बात कर रही थी आप, आजकल एक शब्द बहुत यूज होता है, डिजिटल अरेस्ट। क्या है डिजिटल अरेस्ट? सर, डिजिटल अरेस्ट यानी कि डिजिटल कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ करके किसी को अरेस्ट करना। तो इसमें ये होता है कि जो अक्यूज्ड है, जो क्राइम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक पुलिस की तरह अपने आप को शो करते हैं और लोग वो क्लेम करते हैं कि आपने ये क्राइम किया है या फिर आपने ऐसे कुछ एक्शंस लिए जो कि अगेंस्ट लॉ है, और वो लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे और बहुत एक्सटॉर्ट करते हैं, उनको बेसिकली उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो अरेस्ट में तो हम किसी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यस सर, इसमें 10-10 दिनों तक, अभी रिसेंटली एक कपल, काफ़ी एज्ड कपल थे, उनको 10 दिनों तक अरेस्ट करके, इन द सेंस कि कंप्यूटर के सामने उसको किसी लोगों से बात करने नहीं देते, क्योंकि कहते हैं कि आपको फिर उसके मतलब उनको डराते हैं, बेसिकली उनके फियर का यूज़ करके उनको और डराया जाता है, तो उनका कॉन्टैक्ट खत्म कर देते हैं बाहरी लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड से, और क्योंकि वो ये दिखाते हैं कि वो रियल अथॉरिटी है, तो लोग भी उस चीज़ को सही मान लेते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें हो रही है, कई बार लोगों को पता ही नहीं। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से आप इसको कैसे रोक सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट को? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहली बात तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, और दूसरी बात कि सबसे पहले वो एक्शन उनकी एंड से लिया जाता है कि वो किसी ऐसे कॉल को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर लिंक को ओपन कर लेते हैं। तो ये सब जो चीज़ उनको पता हो, इसके लिए आजकल हमेशा नोटिफिकेशंस आते रहते हैं हमारे फ़ोन्स वगैरह पे कि हमें ऐसे लिंक को क्लिक नहीं करना है, हमें ये चीज़ें, ये ऐसे वीडियो कॉल्स को नहीं उठाना है, या फिर उनके जो कह रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना है, उसको वेरीफाई करना है। तो ये सब इनिशिएटिव्स को और ज़्यादा बड़े लेवल पे कंडक्ट करके। अभी आप इक्वलिटी की बात कर रही थी, इक्विटी और इक्वलिटी में कोई अंतर है या दोनों एक ही शब्द है? नो सर, डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। क्या अंतर है? इक्विटी से, आप पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड है, यस सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर, इक्वलिटी का मतलब हुआ कि हर विदाउट कंसिडरिंग बैकग्राउंड और कोई भी उनके अदर एट्रीब्यूट्स को बिना कंसिडर किए हुए जब हम किसी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। इक्विटी है जब हम उनके बैकग्राउंड्स को, यानी कि वो सब एक प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं, इक्वल लेवल पे, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उन प्रोपोर्शनेट जस्टिस को देना, यानी कि अगर कोई बहुत पीछे है तो उनको हमें ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है, कोई ऑलरेडी आगे है तो उनको कम की ज़रूरत है। तो इसको जब हम कंसिडर करते हैं तब वो इक्विटी की बात होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है क्या?
ये अफर्मेटिव एक्शंस जो है वो इक्विटी को लाने के लिए ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है, जैसे कि SC/ST के लिए विमेन के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और रिजर्वेशन है आर्टिकल 14, 15, फिर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की भी बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं। कौन सा आर्टिकल है आपके अकॉर्डिंग जो इक्विटी को बढ़ावा दे रहा है? सर आर्टिकल 14, 15 इसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि वुमेन और बैकग्राउंड अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए हम इनिशिएटिव्स सरकार ले सकती है उनके खिलाफ जस्टिस को हटाने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी एक आर्टिकल 18 में है, 17 सॉरी सर कंफ्यूज। एंड देन आर्टिकल 338A(b) इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, बैकवर्ड SC/STs, तो ये सब भी उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस के पेनिट्रेशन के लिए काम करते हैं। आर्टिकल 14 में कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और एक कॉन्सेप्ट और है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों में क्या अंतर है? इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा वो एक तरीके से अफर्मेटिव एक्शन को ज़्यादा कंसिडर ना करते हुए होता है, क्योंकि इसमें ये एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ ये वही बात होगी सर इक्वलिटी और इक्विटी वाली, क्योंकि सॉरी सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कोई नहीं। आपसे लास्ट क्वेश्चन कि अभी यूजीसी ने कोई रेगुलेशन जारी किया है, यस सर, इक्विटी रेगुलेशन शॉर्ट में इसको कहा जा रहा है, और उसमें बहुत बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, अगली हियरिंग संभवतः 19 मार्च को है। क्यों विवाद हो रहा है इसको लेकर के? ये वाकिफ है इस खबर से आप? यस सर, उस रेगुलेशन को पढ़ा है आपने? यस सर। क्या है उसमें ऐसा कि विवाद हो रहा है? सर इसमें 2-3 पॉइंट आप बताइए कि ये है इसके कारण विवाद हो रहा है। सर इसमें SC/ST और OBCs के लिए नॉर्म है, जो अगर वो कंप्लेन करते हैं उनके साथ में कॉलेज और स्कूल्स सराउंडिंग्स में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर उनको उनके साथ वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो कंप्लेन करेंगे। स्कूल में भी? यस सर, टीचर्स वगैरम के द्वारा भी ये चीज़ें का स्कूल से क्या लेना देना है? टीचर्स को ये इसमें एम्बिट है जिसमें टीचर्स को इंक्लूड करते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि स्कूल है कि नहीं, बट टीचर्स है। रेगुलेशन यूजीसी का है ना? यस सर। तो यूजीसी किसको रेगुलेट करता है? कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो स्कूल इसमें कैसे आ जाएंगे? आई विल लुक इनटू इट। हाँ ठीक है। देन सर ये जनरल ऐसा प्रोटेक्शन जनरल्स के लिए नहीं है, इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन आई थिंक उनको भी होना चाहिए, क्योंकि वायलेंस तो किसी के भी अगेंस्ट में हो सकता है। और थर्ड कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका गलत यूज़ हो सकता है। तो गलत यूज तो किसी भी एक्ट का हो सकता है। यस सर, बट इसमें ट्रायल्स डायरेक्ट इसमें प्यूनिटिव मेजर्स डायरेक्टली लिए जाएंगे विदाउट इवन गोइंग थ्रू द ट्रायल्स, इसके लिए controversial. No, I think we are done. The interview is more or less done. You can step outside. We'll call you back in 30 seconds. Thank you. Thank you. Right.